Hello friends, today we are going to learn our second lecture of chapter number 2 in standard 9 for the foundation. In our first lecture, we have discussed about work. We define what is work. Then after, we have seen that some formulas related with work. In today's lecture, we are going to solve some problem that is related with the theory that we have already seen in our lecture number 1, right? So before going to start application, first I will like to remember you some of the formulas that is related with the work. See, how can you define the work? Work means what? Work means force into displacement. See, work is a scalar quantity, but force and displacements are the vector quantity. We have seen that two vector quantities are multiply with dot product, and then after we get the value of work. So work is equal to force into displacement, but we can convert this equation more accurately in the form of like, see, work means what? Work means displacement into force, component of force in the direction of displacement. This is more accurate. See, work means force into displacement, but it is not more accurate. This is more accurate. You have to say that work means what? Displacement into component of force that is in the direction of displacement. Sometimes what happen? Sometimes force is not in the direction of displacement. It makes some angle with the direction of displacement. So at that time, you have one another formula. W is equal to what? F d cos theta. And from that, you can say that W is equal to vector F dot vector d. Right? Here theta is the angle between F and D. So that's all that we have already seen in our first lecture. Sometimes what happens in our data, there is no information about force or displacement. There is some information about mass and acceleration. So with the help of mass and acceleration, you can calculate force, and after getting the value of force, you can easily calculate what is work done. So sometimes you have to convert this equation W is equal to force. Force means what? Mass into acceleration into d. So this is one another formula. So these are the same formula, but according to our data, we have to select the correct formula. So once you can able to know what are the important points in our data, then after with the help of that, you have to choose appropriate formula. And after putting the values of that, you can easily get your answer. So that's it for that's it for our previous lectures information. Let us move ahead. Let us move ahead. See, we have such kind of data. A block of mass 1 kilogram slides down on an inclined plane of inclination 30 degree. Find the work done by the block's weight as it slides through 50 सेंटीमीटर. यहाँ पे क्या बोला गया है आपको? आपके पास कोई एक इंक्लाइन प्लेन है. तो पहले तो मैं आपको इंक्लाइन प्लेन के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन बता देता हूं. देखो, अगर आपके पास ऐसा कोई इंक्लाइन प्लेन है तो क्या होने वाला है? सबसे पहले सपोज कि आपका ब्लॉक यहां पे था. सपोज के initially your block is here
and then after it displace here. So at this point let us make a free body diagram of this block. तो यहां पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? सबसे पहला जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है mg. हेलो, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो અહીંયા આગળ તમે આમ ચેક કરજો. if this angle is theta means this is also theta. hello, z type angle, this is also theta. Let us extend this line. This is 90, this is theta. Assume this triangle. Hello, this is theta, this is 90, means this is 90 minus theta. Here you have one force mg. Take horizontal component and perpendicular component of this force. Once you get the horizontal, mg cos 90 minus theta. Hello, if you take horizontal component of this mg, you will get mg cos 90 minus theta, and vertical component is mg sin 90 minus theta. Hello, if you have such vector f and angle is theta, then horizontal component is what? F cos theta. Vertical component is what? F sin theta. According to this, I am writing this, that if force is mg, means this is mg cos 90 minus theta, this is mg sin 90 minus theta. But mg cos 90 minus theta means what? mg cos 90 minus theta means this is mg sin theta, and this is mg cos theta. Hello, in standard 10 in trigonometry chapter you will learn that cos 90 minus theta is what? Cos 90 minus theta is sin theta, and sin 90 minus theta is what? Sin 90 minus theta is cos theta. So with the help of this formula I am writing that mg cos 90 minus theta means mg sin theta, and mg sin 90 minus theta means mg cos theta. Right? This is for your easiness. That's why I am deriving such kind of things. Let us make it one another time. This time I will write down the force only. See, suppose this is your block and it displaces like this. So this is the force in the direction of inclined plane. This is mg sin theta, and this is mg cos theta. हेलो, यहाँ पे mg नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? सपोज आपके पास कोई एक एप्पल है, आप वो एप्पल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो, तब आप ये थोड़ी ना पूछते हो तो वो बड़ा वाला एप्पल किधर गया. हेलो, आपके पास जो मेन थिंग थी उसको तो आपने डिवाइड कर दिया है ना. अगर वो चीज डिवाइड हो चुकी है तो वो जो ओरिजिनल चीज थी वो अब थोड़ी रहेगी. यहाँ पे फोर्स mg लग रहा था, वो mg के ही मैंने दो पार्ट कर दिए. एक आ गया mg sin थीटा, एक आ गया mg cos थीटा. अब यहाँ पे कोई mg और mg फोर्स नहीं रहेगा. यहाँ पे क्या बोला गया है कि फाइंड द वर्क डन बाय द ब्लॉक्स वेट एज इट स्लाइड्स थ्रू द 50 सेंटीमीटर. आपको वर्ड समझने होंगे कि वर्क डन पूछा है, लेकिन किसका वर्क डन? वर्क डन बाय द ब्लॉक्स वेट. ब्लॉक्स का जितना वेट है वो वेट की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है. तो ब्लॉक का वेट तो mg नीचे की ओर था, तो mg का ये कंपोनेंट, ये फोर्स का ये वाला कंपोनेंट ही जिम्मेदार है उसको नीचे की ओर लाने के लिए. हेलो, ये की वजह से ही आपका ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा है. आपके पास वर्क डन की फॉर्मूला तो है W is equal to AF d cos theta, but in place of this F you have to write mg sin theta. Why mg sin theta? Because that force is responsible for the displacement. Hello,
So in place of f, I am writing that mg sine theta means here whatever the angle is, 30 degrees there. So mg sine 30. What is the displacement? 50 centimeter. 50 centimeter means 0.5 meter. Cos theta means cos 30 degree. This is the answer. Let us put value of m and g. What is the block? What is the mass of the block? It is 1 kilogram. They are saying that g is 10 meter per second square, or we have to write 9.8 meter per second square. Yes, g is 9.8 meter per second square. Sine 30 means 1 by 2. This is 0.5. Cos 30 means root 3 by 2. हेलो, साइन में 0 एंगल रहेगा, 30 रहेगा, 45 रहेगा, 60 रहेगा या 90 रहेगा, या तो कॉस में देखो. तो ये ट्रिगोनोमेट्री वाला जो टेबल है वो आपको 10th स्टैंडर्ड में आता है, मैंने पढ़ाया भी है फाउंडेशन के अंदर. एक बार वापस से कह देता हूं कि साइन 0 0 रहता है, साइन 30 1/2 रहता है, साइन 45 1/√2 रहता है, साइन 60 √3/2 रहता है, साइन 90 1 रहता है. और इसको रिवर्स करो तो 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0. तो मैंने यहां से साइन 30 की वैल्यू 1/2 लिखी, कॉस 30 की वैल्यू लिखी, कॉस 30 की वैल्यू लिखी √3/2. अगर आपको ये नहीं मालूम है तो ये चीज भी आप अपने नोटबुक में किधर भी लिख लेना, हो सके तो मॉड्यूल के अंदर ही लिख लेना. ठीक है, यहां से आप सिंप्लीफाई करो. 1 9.8 1/2 मीन्स 0.5, 1/2 means 0.5. This is √3, this is 2. So whatever the simplification is, that is your answer. So this much joule is your answer. हेलो, बात समझ में आ रही है आपको? यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आपको फोर्स कौन सा लेना है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी इस न्यूमेरिकल के अंदर. तो आपको समझना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में हो रहा है. अगर डिस्प्लेसमेंट ये सॉरी मैंने मिस्टेक किया, यहां पे देखो थीटा क्या है आपका, थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल. यहां पे आपने फोर्स क्या लिया, फोर्स तो ये लिया ना. अगर ये फोर्स लिया है तो फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है. अगर फोर्स भी ये है, डिस्प्लेसमेंट भी ये है, तो एंगल कितना आना चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का 0 आना चाहिए. तो यहां पे मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है. यहां पे आप cos 30 नहीं लिख सकते, यहां पे आपको लिखना होगा cos 0. हेलो, cos 0, बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स भी यही डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी यही डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब कि थीटा 0 होना चाहिए. और cos 0 का आंसर आता है 1. cos 0 का आंसर 1 आता है, तो यहां पे आएगा 1. सो 9.8 into 0.5 into 0.5, that is your correct answer. I hope you get my words. Why theta is 0? Okay, fine. So this is the solution. See, 9.8 into 0.5 into 1/2 means 0.5. यहाँ पे जो भी सिंप्लीफिकेशन दिया है वो भी वही बता रहा है जो मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने जो बताया वो समझने के लिए ज्यादा इजी है. तो आप हो सके तो ये सॉल्यूशन निकाल के ये वाला सॉल्यूशन उधर लिख देना और उधर मेंशन कर देना कि थीटा 0 क्यों है. ठीक है, यहां पे भी वही सारी बातें की गई है. एक बार समझ में आए तो ये समझ लेना. A 1 kilogram ball is thrown up with a speed 9.9 meter per second. Calculate the work done by its weight in 1 second. See, समझने के लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है. आपको पूछा गया है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय इट्स वेट. वेट की वजह से कितना वर्क डन लगा ये आपको पूछा है. तो वेट
वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन आपका बॉल डिस्प्लेस ऊपर की ओर हो रहा है। तो अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार वेट नीचे की ओर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों के बीच का एंगल कौन सा रहेगा? 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स एग्जैक्टली अपवर्ड डायरेक्शन में है, फोर्स एग्जैक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल रहेगा 180 डिग्री। तो यहां से मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा है? एफ डी कॉस थीटा, बट थीटा इज 180 डिग्री। फोर्स कितना लगेगा? वेट, बॉल का वेट कितना होगा? एम जी जितना। तो इन प्लेस ऑफ फोर्स यू कैन राइट एम जी। डिस्प्लेसमेंट आपको पता नहीं है, कॉस 180 डिग्री है, यहां पे आ गया वर्क डन। ठीक है, आपको पूछा गया कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय इट्स वेट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के दौरान कितना वर्क डन लगेगा। तो वर्क डन जानने के लिए आपके पास ये सारी चीजें तो आ गई है, जिसमें से आपके पास मास भी है, मास है 1 किलोग्राम। जी की जगह पे आप लिख सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट मालूम नहीं है, cos 180 होगा -1। अगर कहीं से भी आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ भी पता चलता है तब आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप यहां पे देखो, आपको डिस्प्लेसमेंट की कोई भी चीज मालूम नहीं है। सिचुएशन देखो, आपके पास जो बॉल था वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। If your ball is moving in upward direction, it means that acceleration will be constant throughout its motion, because this is the case of upward motion, and during upward motion acceleration is 9.8 meter per second square in downward direction. So throughout the journey, if acceleration is constant, means you can use any formula related with constant acceleration. There are mainly three formula for constant acceleration. One is v is equal to v0 plus at, another one is d is equal to v0 t plus 1/2 at square, and third one is v square minus v0 square is equal to 2ad. From these three formulas you can use any of this if you need. Why? Because these are the formula for constant acceleration, and in our case there is the acceleration which is constant. So you have to select such kind of formula, from that you can get displacement. So this will not help you because displacement is not there. This will help you, this will help you, but select the appropriate. See, when you are throwing the ball with upward direction, at that time initial speed is given, means v0 is given, acceleration is known, final speed is not there, time is given 1 second, in 1 second, so t is given. So this is the appropriate formula, d is equal to v0 t plus 1/2 at square. First I will find displacement from v0 t plus 1/2 at square. Initially speed is 9.9 meter per second square, 9.9 meter per second, but in upward direction. Take upward direction as positive, so downward direction will be negative. So v0 means 9.9 meter per second in upward side. In place of t you have to put 1 second, 1/2. Acceleration is the acceleration of gravity which is in downward direction, and downward direction means you have to take it as negative. So in place of acceleration I am putting 9.8 minus 9.8 there, and t square means 1 square. So it is like 9.9 minus 9.8 divided by 2. So it is like 9.9 minus 4.9. So it is 5 meter. Hello. If displacement is 5 meter, put the value of displacement here. You will get 1 into 9.8 into 5 into minus 1. So minus 98 divided by 10 into 5. 5 2s are 10, 2 49s are 98. So minus 49 joule. This is your
answer. Work done with the help of work done by weight in 1 second is what? It is minus 49 joule. See, ये वाले सोल्व प्रॉब्लम 8 के अंदर जो आपको सॉल्यूशन दिया गया है वो समझ में आए तो आप वो लिखना, अदरवाइज अगर ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो ये वाला सॉल्यूशन ही लिख देना। आप अपने मॉड्यूल में भी थोड़ा बहुत चेंज कर देना। यहाँ पे भी वही बातें की गई है कि देखो ut हमने v0t लिखा, v0t माइनस gt स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी, यहाँ पे बीच में माइनस क्यों आया? क्योंकि ग्रेविटी माइनस होती है। अदरवाइज इन इक्वेशन इट इज v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो आपको दिक्कत आ सकती है कि सर यहाँ पे तो ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है ना, तो माइनस क्यों आ गया? तो ये माइनस ग्रेविटी की वजह से आया है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है। यहाँ पे फोर्स mg कैलकुलेट कर दिया, फिर mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, आंसर इज माइनस 49 जूल। ओके, सी a body of mass 5 kilogram is dropped to a ground from a height of 10 meter. What will be the work done by the gravitational force? In this case they are talking about the work done by the gravitational force. In which direction gravitational force will be act? In downward direction. Where is your object moving? In downward direction. So force is in downward direction, displacement is in downward direction, means work means angle between force and displacement is 0. If angle is 0, then work done is equal to fd cos theta, in which theta is 0. Yes, so you can write w is equal to f d theta. फोर्स कौन सा लेना है? जिसकी वजह से फोर्स पूछा गया है वह फोर्स लेना है। बाय व्हाट? बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सो टेक द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट? यहां पे जो d है वो क्या है? जिसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वह ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट आपको लेना है। थीटा इज द एंगल बिटवीन f एंड d। सो फोर्स की जगह पे आप लिख सकते हैं mg, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आप लिख सकते हैं जितनी हाइट से वो नीचे आ रहा है वो, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आप लिख सकते हैं जो भी हाइट है वो हाइट, और कॉस आएगा 0। मास कितना दिया है? 5 किलोग्राम का मास है। सो इन प्लेस ऑफ m इट इज 5। g की वैल्यू 10 बोला है कि नहीं? नहीं, g की वैल्यू बोला है 9.8 ही लेना है आपको। हाइट कितना है? कितनी हाइट से ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है? 10 मीटर की हाइट से आ रहा है। 1 होगा कि नहीं? सो इट इज 98 डिवाइड बाई 10, 10 will be cancelled, it will be like 5 into 98. So 5 8s are 40, 4 5 9s are 45, 490 plus 490 joule. Hello, plus 490 joule is your answer. Plus 490. It can be minus 490. Why? Because force and displacement both are in same direction. So theta is 0, and if theta is 0, cos theta will be 1. So from this you can learn how to solve such kind of numerical. ये भी solution यहाँ पे जो दिया गया है ना वो भी यही बता रहा है। ऊपर की डायरेक्शन को प्लस जे कैरेट मीन्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ऊपर है, तो नीचे की क्या होगी? माइनस जे, मीन्स के माइनस वाई डायरेक्शन। सो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू माइनस एम जी जे कैरेट बोला है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? यहाँ पे डी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी माइनस डी ही आना चाहिए, माइनस डी जे कैरेट। और यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना, अगर ये लिखना ही नहीं है तो ये लिख लेना, ठीक है। हमारे सीटीपी नंबर, सीटीपी नहीं, सॉल्व प्रॉब्लम, सॉरी यस, सीटीपी प्रॉब्लम 10 का सॉल्यूशन ये ही लिख लेना आप अपने नोटबुक के अंदर, ठीक है। What will be the work done against gravity in taking 10 kilogram mass at 1 meter height in 1 second? What will be the work done against gravity? This time they are talking that what is the work done against gravity? Against gravity means force ऊपर की ओर लेना होगा आपको, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स नीचे की ओर है। अगेंस्ट ग्रेविटी मीन्स माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स लेना होगा कि नहीं आपको?
ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किधर हो रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी, मीन्स ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है एट 1 मीटर हाइट इन 1 सेकेंड. देखिए, what will be the work done against gravity in taking 10 kilogram mass at 1 meter height in 1 second. So ultimately आपको करना क्या है, आपके पास तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, W is equal to AF D cos थीटा. फोर्स कौन सा लेना है, फोर्स आपको लेना होता है mg, लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटी है तो आपको लेना होगा -mg. हेलो, अगर आप यहां पे mg ले रहे हैं, ठीक है, mg ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बताया कि नहीं, मास एट 1 मीटर हाइट इन 1 सेकेंड. व्हाट विल बी द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन टेकिंग 10 किलोग्राम मास एट 1 मीटर हाइट इन 1 सेकेंड. तो 1 मीटर ऊपर जा रहा है, 1 सेकेंड के अंदर आपका ऑब्जेक्ट 1 मीटर ऊपर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दिया है, 1 मीटर. क्या होगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी मींस फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर जा रहा है, तब आपको लेना है cos 0. आप यहाँ पे -mg लेते हैं तो आपने फोर्स कौन सा लिया, ग्रेविटी का फोर्स लिया, ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, तब आपको यहाँ पे cos 180 लेना होगा, तो भी माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा. मास कितना दिया है, 10 किलोग्राम मास है आपके पास. जी कितना है, जी है 9.8 into 1, so it is 98 joule. Hello, answer is 98 joule. So this is the thing. यहाँ पे सही है कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन -98 जूल वाला था ही नहीं. अगर एक ऑप्शन -98 जूल होता तो भी आपको सिलेक्ट कौन सा करना होता, 98 प्लस वाला ही करना होता. ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आप अपने हिसाब से समझते रहना. ये सॉल्यूशन भी देखो, कुछ किया नहीं है, ये सिर्फ क्या किया है, ऊपर की डायरेक्शन को y बोला है. तो पहले कोई पोजीशन थी उसको y1 बोला, फिर कोई पोजीशन है उसको y2 बोला. सो y1 से y2 ऑब्जेक्ट आपका ऊपर गया, मींस कि y2 माइनस y1 ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ ना. y2 माइनस y1 मींस व्हाट, डिस्प्लेसमेंट. mg माइनस mg क्या है, ग्रेविटी का जो वर्क है वो वर्क लेना है आपको. वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी पूछा है तो इसका आपको प्लस कर देना है, mg 2 माइनस y1. y1 तो 0 था, हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर गया, तो वो आंसर आपको लिख देना है mg y2. ठीक है. लेक्चर अटेम्प्ट करते वक्त आपके पास नोटबुक और पेन तो रहना ही चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ मोबाइल या तो लैपटॉप लेके आप बैठ गए और पूरा लेक्चर ऐसे ही देख लिया. साथ साथ मेरे साथ आप जितना भी एक्टिव रहेंगे उतना फायदा आपको ज्यादा होगा. सी, अ बॉय pushes a book applying a force of 5 Newton, means force is given, force is 5 Newton. Find the work done by this force in displacing the book through 20 centimeter. Displacement is 0.2 meter, 20 centimeter means 0.2 meter. And force is acting in the direction of the push. Displacement is in the direction of the push, means what, theta is what, theta is 0. So if you want to calculate the work done, means you have to put the formula, W is equal to FD cos theta. Here theta is 0. What is the force? Force is 5 Newton. What is displacement? It is 0.2, and cos 0 is there. Cos 0 is 1. 5 into 0.2, 1. 1 joule is your answer. W is equal to 1 joule. Hello. This is the speed to solve such kind of numerical, because there is nothing hard in this. कन्वर्जन आपको मालूम रहना चाहिए, सेंटीमीटर में दिया है तो आपको मीटर में करना होगा. ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको हर हमेश ध्यान में रखनी ही होगी. A ball of mass 1 kilogram thrown upward reaches a maximum height of 5 meter. Calculate the work done by the force of gravity during the vertical displacement. Here they are saying that work done by the force of gravity. In which
direction gravity force will be acting? In downward direction. Where is your object moving? Your object is moving upward direction. So force is in downward direction, displacement is in upward direction, means angle between force and displacement is 180 degree. First you have to notice that angle between force and displacement is 180. Mass is given, maximum height is given. So this is the simple one. You can see that formula of work done is what? F d cos theta. Force means mg. डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है, कितना हो रहा है? 5 मीटर का हो रहा है ना, और cos 180 उधर आएगा. देखो यहां पे माइनस नहीं कर देना है. अगर आप ये फॉर्मूला लिख रहे हैं तो यहां पे फिर ग्रेविटी का फोर्स माइनस नहीं लेना है, क्योंकि ये खुद वो ही बता रहा है कि यहां से माइनस ऑटोमेटिक आगे आ जाएगा. सो आपको लिखना है mg इंटू 5 इंटू आगे माइनस कर देना है. मास कितना है? 1 किलोग्राम. g की जगह पे आपको लिखना है 9.8 इंटू 5. सो यह आएगा -49 जूल. हेलो, ठीक है. -49 जूल इज योर आंसर. यहां का ये मतलब देख लो आप. आपको पूछा है कि ग्रेविटी का कितना वर्क लगेगा. ग्रेविटी -49 जूल वर्क डन लगा रही है, मतलब कि आपको बाहर से +49 जूल वर्क करना पड़ेगा उसको ऊपर ले जाने के लिए. वी कैन ऑल्सो से दैट वर्क डन ऑफ 49 जूल हैज बीन डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है. सी द वर्क डन बाय द वेट ऑफ a 1 kilogram mass while it moves up through 1 meter is what? Same to same related with the previous one. This is in your homework, right? So let us do it by yourself. See, a person pulls a block on a horizontal surface by applying a force of 5 Newton at an angle of 30 degree. This time force and displacement are not in the same direction. Force is making some angle with the direction of displacement. So you have to select this formula, right? W is equal to what? W is equal to F d cos theta. What is the value of pull? It is 5 Newton. It is 5 Newton. How much the displacement is? It is 2 meter. And what is the angle between force and displacement? Force is 5 Newton, displacement is there. So 30 degree is the angle between force and displacement. So you have to write. So it is 5 into 2, 10 cos 30 means √3 by 2. So ultimately your answer is 5 √3. W is equal to 5 √3 joule. Fine. Will be cancelled. So 5 √3 is your answer. A body undergoes a displacement of 8 meter when a force of 6 Newton is applied. The direction of the force make an angle of 60 degree. The work done by the force on the body is what? Same to same question, but this time angle is not 30 degree, this time angle is 60 degree. Just data is changed. So W is equal to F d cos theta. Cos 60 means 1 by 2. The value of cos 60 will be 1 by 2. So let us do it by your own self. See this question. Okay, this is in homework. See, the work done on an object in the direction of displacement of 2 kilogram is 20 joule. If we apply the force on it, it is accelerated with acceleration of 2 meter per second square. Find the displacement during this. See, आप आराम से डेटा पढ़ो, क्या क्या बोला है वो आप नोट डाउन करते जाओ. The work done on an object in the direction of displacement of 2 kilogram is 20 joule. वर्क डन पहले से ही दे दिया है. वर्क डन है 20 जूल. किसका? 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक का. वी अप्लाई द फोर्स ऑन इट
if it is accelerated with the acceleration of 2 meter per second square, acceleration is given 2 meter per second square. The displacement during this is what? Displacement is what? So ultimately you know the formula, W is equal to what? F D cos theta. Is there any information related with theta? The work done on an object in the direction of displacement. See, the work done on an object is in the direction of displacement. मतलब कि फोर्स भी उधर ही हो रहा है जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो थीटा आपका क्या रहेगा? थीटा आपका रहेगा 0. सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 0 तो क्या हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री तो 1 हो जाएगा. सो अल्टीमेटली एफ इंटू डी. लेकिन फोर्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मास है, एक्सेलरेशन है. सो इन प्लेस ऑफ फोर्स यू कैन राइट मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी. W इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू डी. W दे दिया है 20 जूल, मास दे दिया है 2 किलोग्राम, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो गिवन. Displacement is what? Displacement is 20 divided by 4, it is 5 meter. Hello, displacement is 5 meter. 5 मीटर आपके ऑप्शन में किधर होना चाहिए. ठीक है. So this is the way to solve such kind of problem. कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ना, उसके बारे में आप ज्यादा फिक्र मत करना. आप W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा एक ही फॉर्मूला हर बार यूज करना. फिर थीटा क्या है, फोर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो सारी चीज हिसाब से कैलकुलेट करना. इफ द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 किलोग्राम आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स इज 50 जूल एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस 10 मीटर, व्हाट इज द एक्सेलरेशन विल बी द, what is the acceleration that you have to find out, right? So same to same problem है. इसमें भी आपको वर्क डन दे दिया गया है. कितना वर्क डन है? 50 जूल है, मास है 5 किलोग्राम. मास है 5 किलोग्राम, वर्क डन है 50 जूल. what is theta? Object displaced 10 मीटर in the direction of displacement. in the direction of displacement है तो थीटा आपका क्या है? 0 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है 10 मीटर. आपको पूछा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, ये क्या होगा? सो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा. वर्क डन की जगह पे आप लिख दो 50 जूल, फोर्स की जगह पे आप लिख दो मास इंटू एक्सेलरेशन. डिस्प्लेसमेंट इज देयर, हियर कॉस 0 विल बी देयर. सो व्हाट इज मास? मास इज 5 किलोग्राम. Acceleration you want to find out, displacement is given 10, cos 0 is 1, this is 50. So 50 into 5 into 10, 50. These are cancelled, so acceleration will be 1 meter per second square. हेलो, कैंसल होगा तो आंसर 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये 10 into 5 50 नीचे जाएगा. 50 ones are 50, so answer is 1 meter per second square. So B 1 meter per second. इसमें 0 देना चाहिए, क्योंकि कितने गधे को ये पता नहीं है कि ये ऐसे कैंसिल करते हैं फिर आंसर लिखते हैं 0. ये 1 होता है, 0 नहीं होता है. A 2 kilogram body is sliding up an plane of inclination 30 degree. Find the work done of the force of gravity in moving a body through 1 meter. See, once again W is equal to F D cos theta. In place of F you have to write mg sin theta. In place of displacement, कितना डिस्प्लेसमेंट है? 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट बोला है ना, और cos आएगा 0. जो हमने पहला जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था सेम टू सेम वैसा है. ये क्वेश्चन उधर उसके साथ होना चाहिए. m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम है, तो यहाँ पे नीचे की ओर कौन सा फोर्स लगेगा? mg sin थीटा लगेगा. यहाँ पे क्या लगेगा? mg cos थीटा लगेगा. लेकिन इसका कुछ काम नहीं है हमको, क्योंकि यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है आपका डिस्प्लेसमेंट करने के लिए. सो फोर्स की जगह पे mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्प्लेसमेंट, और थीटा की जगह पे मैंने 0 लिखा है. मास कितना दिया है? 2 किलोग्राम. ग्रेविटी है 9.8. कितने का इंक्लिनेशन है? 30 डिग्री. थीटा इज 30 डिग्री, सो साइन 30 इज देयर. ये भी 1 है, ये भी 1 है. साइन 30 का आंसर आएगा 1/2. 2 विल बी कैंसल, सो 9.8 जूल इज योर आंसर.
हेलो 9.8 जूल, दिस इज योर आंसर। लिख लेना आप ये वाला सॉल्यूशन किधर भी। यहां पे देखो आपको ये बोला होगा शायद, तो देखो डेटा एक बार चेक करो। यहां पे क्या बोला, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ग्रेविटी इन मूविंग द बॉडी थ्रू 1 मीटर। 1 मीटर ले जाना है, लेकिन किधर ले जाना है, नीचे की ओर ले जाना है कि ऊपर की ओर ले जाना है, ये मेंशन नहीं किया है। अगर यहां पे ये मेंशन नहीं किया है तो यहां पे ये मेंशन होना चाहिए कि आप अपने ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर की ओर 1 मीटर ले जाते होगे ना, तब क्या होगा, ग्रेविटी वाला फोर्स नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर आएगा, तब जाके आपका एंगल पाई रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। तो यहां पे एक फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन मूविंग द बॉडी थ्रू 1 मीटर, फिर यहां पे एक ऐड कर दो इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये वर्ड आना ही चाहिए। ऐसा आप अपने मॉड्यूल में सीटीपी लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 30 में ऐसा थोड़ा करेक्शन कर देना, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। फिर जो सॉल्यूशन बोला, उसमें जो सॉल्यूशन दिया गया है आपको, वहां पे उन लोगों ने पाई की वैल्यू माइनस कॉस की वैल्यू पाई ले ली है। तो कॉस की वैल्यू आपको थोड़ी ना पता चलेगा कि पाई लेना है। देखो यहाँ पे मेंशन किया है कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन डेटा में कुछ भी ऐसा मेंशन किया हुआ नहीं था, तो आप ये ऐड कर देना उधर, ठीक है। A force of 12 Newton does a work of 12 Joule on a body when the body is displaced through 2 meter. At what angle to the displacement does the force act? फोर्स दिया गया है आपको 12 न्यूटन, वर्क कितना दिया है 12 जूल, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2 मीटर। दे आर आस्किंग व्हाट इज द एंगल थीटा। सो इसमें तो कुछ है ही नहीं, W इज इक्वल टू AF D cos theta. In place of W you have to write 12, in place of 4 you have to write 12, in place of displacement you have to write 2 and cos theta. 12 will be cancel out, so cos theta will be क्या, cos theta will be 1/2। आप 1/2 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, cos 60। 1/2 मीन्स क्या, cos 60। सो यहां से क्या आया, cos थीटा इज इक्वल टू cos 60। सो थीटा क्या होगा, थीटा आपका होगा 60 डिग्री। सो फ्रॉम दिस यू कैन राइट दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। हेलो, बात दिमाग में जा रही है आपके, क्यों थीटा 60 डिग्री आ रहा है, क्योंकि 1/2 को आप cos 60 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, फाइंड द वर्क डन, W इज इक्वल टू क्या करना रहेगा, W इज इक्वल टू AF D cos थीटा। फोर्स है 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 5, cos की वैल्यू है 30। सो 100 इंटू 5 500, cos 30 विल बी √3/2, इट इज 100√3। ऐसा तो कुछ आंसर ही नहीं है। हेलो, फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, तो फोर्स की जगह पे तो आपने 100 लिखा, डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर का, cos 30 तो √3/2 ही होता है। अच्छा, 500 डिवाइड बाई 200 थोड़ी ना होता है, 500 डिवाइड बाई 2 तो 250 होता है। आप भी क्या मेरे साथ ऐसे बातें करते करते मेरे को भी गलत गलत सिखा रहे हैं। खास एक बात याद रखना मित्रों, कैलकुलेशन में तो कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये तो मैं जानबूझ के करता हूं क्या कि आपको पता चल सके कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, W इज इक्वल टू 250 इंटू √3 जूल, दिस इज योर आंसर बी। सी, फोर्स इज गिवन, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन। फोर्स की वैल्यू क्या है आप देखो एक बार, 5i कैरेट प्लस 3j कैरेट प्लस 2k कैरेट। फोर्स की वैल्यू गिवन 5i कैरेट प्लस 3j कैरेट प्लस 2k कैरेट।
displacement is given 2i caret minus j caret. ठीक है, the work done on the particle in the joule is what? वर्क डन क्या है वो आपको पूछा है। तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी ही दी गई है, तो यहाँ पे आप ऐसे ऐड कर दो 0 k कैरेट, क्योंकि k कैरेट किधर भी दिया नहीं है। सो यहाँ पे तो कौन सा फॉर्मूला होगा, एफ डी कोस थीटा यूज करने की वजह आप एफ डॉट डी कर दो, और ये आपको स्केलर मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 5i कैरेट प्लस 3j कैरेट प्लस 2k कैरेट। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, 2i कैरेट माइनस j कैरेट प्लस 0k कैरेट के साथ। तो ये वाली टर्म i वाली के साथ i वाली का ही मल्टीप्लीकेशन होगा, i वाली का j वाली के साथ मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 0, i वाली टर्म का k वाली टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन क्या होगा 0। मतलब इन दोनों का कुछ आंसर आएगा। 5 2s are 10, i कैरेट इज 1, फिर प्लस ही करना है, फिर j कैरेट और j कैरेट का ही करना है। 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, j कैरेट 1 हो गया, फिर प्लस ही करना है। फिर ये 2k कैरेट और 0k कैरेट, 2 इंटू 0 0, k कैरेट विल बी 1। सो आंसर इज 10 minus 3, so 7 joule is your answer. So work done is what, 7 joule plus 7। JEE 2004 का क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी चीज इसके अंदर हार्ड नहीं है। 12th के बाद JEE की एग्जाम आती है जिसमें 4 मार्क का ये क्वेश्चन आता है, लेकिन आप अभी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं 9th स्टैंडर्ड के अंदर। तो यही बेनिफिट है आपके फाउंडेशन कोर्सेज चलाने का, क्योंकि जब आप 11th 12th में आएंगे तब आपको बहुत सारी आसानी रहेगी ये सारी चीजें समझने के लिए। ठीक है, see, a man starts walking from a point on the surface of earth and reaches diagonally opposite point. Surface is smooth. What is the work done by him? See, एक इंसान ऐसे चलते 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 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे चला गया। सरफेस स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है मींस फ्रिक्शन का तो कोई वर्क होगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन का तो फोर्स ही नहीं है। फ्रिक्शन इसमें बोला नहीं है कि वर्क डन किसका करना है, नहीं सॉरी बोला है वर्क डन बाय हिम इज व्हाट, पर्सन का वर्क डन कितना रहेगा। तो पर्सन का डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन पर्सन का जो फोर्स लग रहा है mg वो नीचे की ओर लग रहा है। सो फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल, so angle between displacement and force is 90 degree. So once you apply the formula, W is equal to AFD cos theta. Here theta is the angle between force and displacement. AFD cos 90, and cos 90 is 0. So AFD 0. Whatever in the multiple of 0 is 0. So work done is 0 joule. So here answer is 0. Why it is 0? Because angle is pi by 2 or 90 degree. So that's it for today's lecture. We have completed the portion work. The name of the chapter is what? Work, energy, power. There are 3 subtopics. We merge all that 3 subtopics and make one chapter, work, energy and power. In these 2 lectures, we have discussed all about the work. In our next lecture, we are going to discuss about energy. This is the chapter from 11th science in which there are more information about work. But in foundation courses, we have limited our course up to this. So that's all for the work. In our next lecture, we will discuss about energy, and then after we will discuss about power. So we stop here. Write down the homework. Jai Hind, Jai Bharat, Astu. Thank you.